ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਅਰ ਰੈਕਟ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੂਵ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਗੇਂਦ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਗੇਂਦ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗੋਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਬੇਟਾਂ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਿਵਾਏ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ अस्सलाम ਇਲਾਵਾ वालेकुम आमिर भाई। ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜਾ ਤਾਲਮਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਰੀਅਲ ਕਜ਼ਨ ਕੇ ਆਟਮਾ ਕਜ਼ਨ? ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਸੱਕੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਹੂੰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਂਤ ਪਾਓ ਪਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲਾਨਤਾਂ ਲੂਨਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਲਾਨਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਨਤ ਪੈ ਚੱਲੀ, ਲਾਨਤ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੈ, ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਪੈ ਗਈ। ਲਾਨਤ ਦੁਆ ਹੈ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਲਾਨਤ ਦੁਆ ਕਿੱਦਾਂ। ਲਾਨਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ, सॉरी। ਵੈਸੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੰਬਲ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਹੰਬਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਹੰਬਲ ਕੇ ਫੰਬਲ? ਹੰਬਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੰਬਲ ਕੇ ਹੰਬਲ? ਹੰਬਲ ਸਰ, ਹੰਬਲ। ਅੱਛਾ, ਹੰਬਲ ਐਚ ਨਾਲ? ਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਐਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਫੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਤਾ ਫੰਬਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਬਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਹਾਂ, ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ जी जी। ਇਹ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। अच्छा जी मुसाफिर साहब, ਹਾਂਜੀ, मैं ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋ ਸੀ ਜੀ? ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੜਦੇ ਲੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ ਪੀਸਫੁਲ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਬਸ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਲੜੇ ਝਗੜੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਮਗਨ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਸਭ ਦਾ ਬਿਲੀਵ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣੋ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜ ਕੇ ਨਾ ਸਕੂਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਸਕੂਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਕੂਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਦੱਸੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਕੂਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਨ ਔਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋਵੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਰਜ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਜੀ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਕੀਦ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਲਖਸੂਸ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਇਹਤਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਮਾਜ਼ ਗੋ ਕੇ ਗਰਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਗਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਖਾਲਿਸ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਨਿੱਘਾ ਹੋ ਕੇ ਬਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਸਕੂਨ ਰਾਹਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੇੜਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ 'ਚ ਪਵਾਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਨ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਚ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਖੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਢੇਡ ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਓਵਰਆਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਆ ਗਏ? ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯੂਸਫ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਲਦੀ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਵਿਦਨ ਡੇਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਤਲਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਮੁੰਤਜ਼ਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੁਸਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ 11 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ 29 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਚ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਇਹ ਸੰਗੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी काफी आखिरी फैसला कुन मार का आखिरी फैसला। मौलवी सनाउल्लाह साहब के साथ आखिरी फैसला। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਾ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਆਪ ਆਟੋ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ। ਉਹ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਲਕ ਮਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਮਲਕ ਮਰਾਜ। इमरान साहब की आवाज कट रही।
ਫੈਸਲਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਜਾਲ ਕਜ਼ਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਾ ਨया ਝੂਠ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੰਗ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ मौलवी साहब आपने मुझे बहुत दुख दिया, आपने मुझे बहुत सताया और मैं सब्र करता रहा, लेकिन अब जब कि मैं देखता हूँ कि आपने दूर दूर तक मेरे मुतल्लिक मशहूर कर दिया है कि ये शख्स दुकानदार है, ठग है और मुफसिद है। मुफसिद का मानी हरामजादा बताया है मौलाना आजम सैफी ने मुझे, कि ये दुकानदार है, ठग है और मुफसिद है, यानी हरामजादा। तो वो कहते हैं मिर्ज़ा साहब कि अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मैं अल्लाह से दुआ करूं। मैं कोई ये वही या इल्हाम की बिना पर कोई पेशगोई नहीं करने लगा, बल्कि मैंने महज दुआ के तौर पर अल्लाह ताला से फैसला चाहा है। आगे उन्होंने दुआ लिखी है कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे कदीर व बसीर मालिक, सुनने वाले, कुदरतों वाले, ताकतों वाले मालिक, मैं तेरी जनाब में इंतहाई आजिज़ी से इल्तजा करता हूँ। ये सारी जो आप तहरीर पढ़ रहे हैं ये इसी मजमून में, राइट? बिल्कुल, ये सारी बातें मैं ज़ुबान नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये तहरीर के अंदर मौजूद है, इस इश्तिहार के अंदर मौजूद। मफहूम आप, हाँ, मफहूम दे रहे हैं, ठीक नहीं, है। तकरीबन अल्फाज भी मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक मुझे मुस्तैज़र हैं कि अल्फाज भी मैं ना बदलूँ। अगर आप कहें कि ये बात कहाँ लिखी हुई तो मैं अभी आपको निकाल कर दिखा सकता हूँ। नहीं, वो तो मुनाज़रा है आपका, वो देखेंगे फिर। इश्तिहार के अंदर ही मिर्ज़ा साहब ने ये लिखा हुआ है कि ए मेरे मालिक, ए कादर और बसीर मालिक, मैं तेरी जनाब में इंतहाई आजिज़ी से मुल्तजी हूँ, यानी इल्तजा करता हूँ कि मेरा और मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी का फैसला कर दे। अल्लाह ताला को मुखातब करके कहते हैं कि या अल्लाह मेरा और मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी का फैसला कर दे। अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी की ज़िंदगी में मार दे और उनको मेरी मौत से खुश कर दे। सही। लेकिन अगर वो झूठे हैं तो उनको मेरी ज़िंदगी में मार दे। ये दुआ लिखी है उन्होंने। हाँ, या अल्लाह अब फैसला कर दे। मैं जानता हूँ कि झूठे की उम्र लंबी नहीं होती, ज्यादा लंबी उम्र नहीं होती, और तो झूठा ये ऐसा है, ये हम तो सुनते कि लंबे की झूठे की उम्र लंबी होती है। लंबी होती है। हाँ, वो लेकिन मिर्जा साहब को कौन सा पता है, कुरान पाक उन्होंने पढ़ा थोड़ी था, वो तो वैसे खुद को लगाया होता लोगों को। यही बात मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने लिखी कि भाई ये आपने क्या लिख दिया है कि आप कहते हैं कि मैं मसीह मऊद हूँ, नबी हूँ, पैगंबर हूँ, और आप कहते हैं कि झूठे की उम्र लंबी नहीं होती। ये कहाँ से आपने पढ़ा है? कहाँ लिखा हुआ है झूठे की उम्र लंबी नहीं होती? बहरहाल मिर्जा साहब ने जो लिखा मैं वो बता रहा हूँ। कहते हैं मैं जानता हूँ कि झूठे और मुफसिद और दगाबाज लोगों की उम्र लंबी नहीं होती, और वो बिल आखिर अपने दुश्मनों के सामने ही हलाक हो जाता है। तो या अल्लाह अगर मेरा दावा झूठा है, मैं झूठा हूँ, मैंने अपने नफ्स से घड़कर ये बातें लिखी हैं, तो या अल्लाह मुझे मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी की जिंदगी में मार दे, मार दे, मार दे, मार दे। लेकिन अगर ये शख्स झूठा है जिसने दूर दराज के मुल्कों तक, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं
मिस्र, लीबिया तक, दूर दराज के मुल्कों का मतलब यही है ना, दूर दराज के मुल्कों का, मेरे बारे में ये मशहूर कर दिया है कि ये ठग है, ये दुकानदार है, ये धोखेबाज है, ये मुफसिद है, ये कज़्ज़ाब है, ये दज्जाल है। तो कहते हैं फिर या अल्लाह इसको मेरी जिंदगी में मार दे, मेरे सामने इसको मार। आखिर पे कहते हैं कि बिल आखिर मौलवी साहब से इल्तमास है, इल्तमास समझते हैं ना, मुल्तमिस हूं मैं कि मौलवी साहब मेरे इस इश्तिहार को आप अपने पर्चे में छाप दें। उनका पर्चा था अहल हदीस अमृतसर, उसका नाम था। अपने पर्चे में छाप दें और इसके नीचे जो चाहे लिख दें, अब फैसला खुदा के हाथ में। ये बात आपने भूलनी नहीं जो मैंने अभी कही है ना कि बिल्ला समझ गया हूँ। ये तहरीर पढ़ रहे हैं आप तो मैं ठीक है, बिल्कुल इस तहरीर को जी कोड एंड कोड बिल आखिर मौलवी साहब से इल्तमास है कि वो मेरी इस सारी तहरीर को मेरे चले शॉर्ट कर दें थोड़ा सा, इतनी ये खुल रही है। हाँ, और पता क्या आखिरी हाँ, अल्फाज, मैं आखिरी अल्फाज जी। पढ़ रहा हूँ। बिल आखिर मौलवी साहब से इल्तमास है कि वो मेरे इस मजमून को अपने पर्चे अहल हदीस अमृतसर में छाप दें और इसके नीचे जो चाहे लिख दें, अब फैसला खुदा के हाथ में है। हाँ नीचे अपना नाम लिखा हुआ है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, रईस कादियान वगैरह वगैरह। ये मजमून, ये इश्तिहार उन्होंने छापा जो मैंने आपको सुनाया है ज़बानी। हो सकता है उसमें से कोई फिक्र आगे पीछे, लेकिन मजमून का मफहूम ये ना हो। अभी मैं पढ़ के अगर कहीं तो लफज बलफज भी सुनवा सकता हूँ। अबे नहीं, वो मसला नहीं। मुझे ये 29 मार्च का मुझे खुद अभी मैं क्यूरियस हो गया हूँ, पता है। तो पहले मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो ये जो बातें या जो आपने तहरीर बताई है तो अभी आगे सुन बिल्कुल लें। हाँ। ये इश्तिहार छापा 15 अप्रैल 1907 के दिन, 15 अप्रैल 1907 के दिन। और उसके बाद 2-3 रोज के बाद मिर्जा साहब ने कहा कि मुझे इल्हाम हुआ है, उजीब व दावत अद्दा दान, कि हम हर मांगने वाले की दुआ कबूल करते हैं, मांगने वाले की दुआ को हम कबूल कर, यानी इल्हाम हो गया कि तेरी दुआ कबूल होगी। बोलोगे दुआ की कि या अल्लाह हम दोनों में से जो झूठा है उसे सच्चे की जिंदगी में मार दे, और इल्हाम हो गया कि दुआ कबूल हो गई है। और दुआ कबूल कैसे हुई? 15 अप्रैल 1907 को इश्तिहार छापा और 13 महीने के बाद, 13 महीने 10 दिन के बाद 26 मई 1908 के दिन सुबह 10:30 बजे मिर्जा साहब मर गए। और मौलाना सनाउल अमृतसरी अलैहि रहमा वो मार्च 1948 में पाकिस्तान बनने के बाद, मिर्जा साहब के मरने के 40 साल बाद यहाँ सरगोदा में आके फौत हुए। यहाँ उनकी कब्र है जी। दुआ कबूल हो गई है, लेकिन ये दुआ कबूल होने को देखकर, होती हुई देखकर मिर्जा ही नहीं मानते। वो कहते नहीं दुआ कबूल नहीं हुई मिर्जा साहब की। भी ये बहुत सॉलिड पॉइंट है। देखिए मतलब मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, बट इसमें अगर कोई जो पेचीदगी है या इसमें कुछ है, मतलब आपका पॉइंट तो बिल्कुल सॉलिड है, मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को। मुझे पता ही था कि वो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पहले ही फौत हो गए थे, पर इसमें जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं और जो आपके, और ਹੁਣ ਤੇ मेरा कज़न ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ही देता है, वो पीदा मुंडा है, तो इनके साथ जो भी आपके होती है वो डिबेट, वो बेशक वो सुनने के वो बड़ा मज़ा आएगा सुनने का इंशाल्लाह। मैं अगर खुद ही अभी आपसे उसकी मैं मेरे दिल में बड़ा आ रहा है कि मैं इसके अंदर जाऊं और मैं पूछूं, बट नहीं, वो मैं खुद ही वेट करूंगा उस चीज़ का। एक होता है ना एक ड्रामे का एक लास्ट एपिसोड आना होता है कि इतने हुन कट्टी कट्टा निकलेगा, तो बस वो हम देखेंगे 29 को। आप दुआ करें कि 29 जून 2025 खैर खैरियत से आए आएगा। और आपका बहुत भाई भागे ना बात से। जो उन्होंने बात वादा कर लिया हमारे साथ, वो उससे अगर भागे ना तो इंशाल्लाह आपको फैसला ही दिखाएंगे। नहीं, वो मैं जितना उनको जानता हूँ वो भागने वालों में से कभी भी नहीं है, ऐसा उनका रवैया नहीं। अब ये नीचे कुछ आपके साथी पता क्या लिख रहे हैं?
जी ये जो आपने बात कही है ना, वो कहते हैं आपने गलत कही है मुसाफिर साहब। ये जो आपने कही है कि ये मिर्जा साहब ने क्या ये बीमारी है कि झूठा उसको लंबी उम्र नहीं मिलती। झूठे को तो अल्लाह ताला कई दफा ज्यादा मौका देता है कि वो तौबा कर ले, कल को क़यामत के दिन आके ये ना कहे कि मुझे मौका नहीं दिया गया। वो कहते हैं हाँ, आपने ये एग्जैक्टली मैं ये तो कहता हूँ कि झूठे की उम्र लंबी होती है या गुनाहगार की उम्र ज्यादा लंबी होती है, ऐसा हमने सुना है या बुक्स में पढ़ा है। तो हाँ, क्या कि लेकिन उसको वो अल्लाह ताला मौका देता है कि वो तौबा कर ले, ये तो सुना है। और ये सब का वो कहते हैं जो आपके भाई है ना नीचे, वो जी आपके साथी नीचे मैंने कह रहे comments- हैं कि मुसाफिर साहब आपने गलत बात कही है। अगर लंबी उम्र मिलती है तो फिर मिर्जा साहब को नहीं पता था कि झूठे को लंबी उम्र नहीं मिलती, झूठे को बंदा अल्लाह ताला जल्दी पकड़ लेता है। मिर्जा साहब ने फिर हमें ये भी मारी है। शायद हाँ नहीं मतलब हो सक मैं तो नहीं करूँगा कि किसी बुजुर्ग को मैं नहीं कुछ कह सकता, बट हो सकता है मैं गलत हूँ या नहीं, मेरी आप सोच ठीक ये है, गलत मैं है। आपकी तायद कर रहा हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल आपने ठीक हाँ फरमाया मगर है। आमिर साहब मैं फिर भी ना किसी अगर मैं तो ना समझू ना, मेरे पास कोई इतना इल्म नहीं है, मैं कोई अपनी स्टेटमेंट नहीं दे सकता किसी के भी खिलाफ। तो इस वजह से अगर ये बात मेरी जो बात के मुतजाद जा रही है तो फिर मुझे कुछ सीखना चाहिए, है ना। तो जब मैं वो सीखूंगा, उसके ऊपर लर्न करूंगा और मुझे ज़्यादा इल्म हासिल करूंगा, तो फिर मैं कोई स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि हाँ यही बात सही थी या वो बात गलत थी, या मैं ज़्यादा सीख के फिर मैं उसी बात को रख लूंगा कि हाँ वो बात सही थी, मेरी बात जो मैंने सीखी थी पहले वो गलत थी। तो इसमें दोनों चीज़ें ऑप्शन मुसाफिर वो साहब। ओपन है। जी जी मुसाफिर साहब एक काम करें, आप एक फिक्रे का सवाल करें कि नीचे वालों मेरे भाइयों सिर्फ इतना आके बता दो कि मिर्जा साहब की ये बात कुरान और हदीस की रूह से गलत है कि सही है कि झूठे को लंबी उम्र अल्लाह ताला नहीं देता। ये बात सही की उन्होंने कि गलत की, इसका नहीं, ये तो मैं जवाब खुद कोई ही डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा। नहीं देखे नहीं नहीं नहीं, मसीह नहीं, मौद इसका इस्लाम मुनाजरे की से कोई इसका मुनाजरे से कोई लेना देना नहीं मोहतरम, ये एक जर्नल बात है। ये तो बात आप वहां कहते पे हैं, होगी मैं कह दूं, भी, ये भी बात वहां पे होगी। झूठों को अल्लाह ताला लंबी मोहलत देता है कि नहीं देता, ये सवाल है, पूछें तो सही देता अपने है, भाई। हाँ हाँ चले पूछ लेते हैं अगर आप कहते हैं तो। ये मेरे पूछने भाई में जवाब मतलब है इसका। कोई लड़ाई है, ये कोई झगड़े वाली बात है? जवाब नहीं देंगे आपको, ये लोग जवाब नहीं देंगे। मैं आपको लिख कर देता हूँ, आप इनको आवाज देकर बुलाएं और कहें कि ऊपर आके बताओ कि झूठे को अल्लाह ताला लंबी उम्र देता है या नहीं, ये बता दें कुरान और हदीस की रूह से, किताब और सुन्नत की रोशनी में। वो कह रहे हैं झूठे के झूठ की उम्र कम होती है, ये भी उनका पॉइंट देखें। अच्छी बात लिखी है टाक झूठे मास्टर। के टाक मास्टर साहब उत्ते आके दसो, समझ नहीं आई आप क्या कहना चाहते? झूठे के झूठ की नहीं ये उम्र बात कम अच्छी की है उन्होंने। हाँ होती है। हम नहीं, हमारा सवाल ही मैं ये कहता नहीं हूँ है ना। हम ये भी मान लें तो ये भी आपके खिलाफ जाती है बात। ऊपर पर आगे मेरा करें खैर बात। ये सवाल ही नहीं है। चले मतलब झूठे के मुझे झूठ के थोड़ी बारे सी में ये सवाल बात नहीं है। उनकी ना लाइक कहीं ना कहीं उनका भी पॉइंट वैलिड है कि झूठे के झूठ की उम्र कम होती है। तो वो ठीक ये है, समझने हमारा वाली सवाल बात तो है। झूठे के बारे में है। हमारा सवाल तो सर झूठे के बारे में है। हाँ ये पर्सनैलिटी झूठे पे की आप उम्र जा रहे लंबी हैं। होती है ये कि छोटी हाँ होती है? झूठ झूठे जो की उसने उम्र लंबी बोला होती है। वो अलग है और पर्सनैलिटी अलग है, जैसे मैं समझ रहा हूँ। हाँ, हम पर्सनैलिटी हाँ के बारे में पूछ रहे हैं, उस आप पर्सनैलिटी personality की पे उम्र जा लंबी रहे हैं, होती है है ना? कि छोटी होती है? हाँ हाँ आप पूछ रहे हैं, जरा आपका आगे जो पॉइंट है वो पर्सनैलिटी के ऊपर है। पूछें टाग मास्टर साहब, आगे इनसे पूछें। जी मुझसे पूछते हैं तो मैं बताता हूँ कि अगर कोई झूठा है शख्स जो अक्सर झूठ बोलता है या कोई झूठा नहीं है, दोनों की उम्र का ताल्लुक उसके झूठ के साथ नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे दिल बहुत की बात आला। कर दिया, बहुत बहुत आला। अल्लाह खुश कर दिया टाग मास्टर साहब। झूठ बोले या सच बोले, झूठ बोलने वाले का मतलब उसकी उम्र ज्यादा हो थोड़ी हो, वो सच्चे की जिंदगी में मरे या सच्चा उसकी जिंदगी में मरे, ये कोई अल्लाह ताला ने कायदा कुलिया नहीं बनाया। एग्री हैं टाक मास्टर साहब? हाँ जी, अल्लाह ताला ने जो कुदरत बनाई है वो कुदरत के हिसाब से जो चलता है वो यही चलता है। झूठा शख्स जो है वो लंबी जिंदगी भी पा सकता है और शॉर्ट भी हो सकती है, जैसे कि आम बंदे की होती है। जी जी जी। तो ये जो बात है, ये जहालत है कि नहीं कि झूठा लंबी उम्र पाता है, सॉरी झूठा लंबी उम्र नहीं पाता? ये बात जहालत है कि
इल्मी बात है, इल्मी नुक्ता है। नहीं, ना तो ये जहालत की बात है ना ये इल्मी बात है, ये अपने अपने अंदाजे हैं, अपने अपने कयास हैं। बोंगी इससे है, कोई- बोंगी, बोंगी कह सकते हैं इसको। नहीं, इसका बोंगियत के साथ भी कोई तल्लक नहीं है। मतलब क्या इसको कहेंगे अभी फिर? अभी अगर मेरे तजर्बे में अगर कोई मैं 2-4 झूठे जो है फौत होते देख लूं, तो मैं ये कहना शुरू कर दूंगा कि झूठे जल्दी फौत हो जाते हैं। तो ऐसा है नहीं है ये। मोस्टली बात करते हैं ना डॉक्टर ये- मास्टर साहब, जैसे इन्होंने बात है या जो ये पॉइंट उठा रहे हैं, जो इन्होंने रेस किया है, तो ये एक एवरेज बात कर रहे हैं या जो जैसे चलता है दुनिया में नॉर्मली। नहीं, अक्सर अब ये है ना कि ये जो आमिर नज़ीर भाई है ना, ये ज़रा थोड़े से यानी कि माजरत के साथ फसादी आदमी है ना। अब ये निकालेंगे कि नेगेटिव पॉइंट आपने रेस तो ये करते कहा हैं। है। हाँ जी, मैं समझता मुसाफिर हूँ भाई, क्योंकि चुप वो करे, मुझे मुखालिफ पता है, मुझे पता जी है। जी। इतनी फेवर ना करे, वो खुद क्यों नहीं बोलते? नहीं नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ये नेगेटिव पॉइंट रेस करते हैं, मुझे पता है इनका। अच्छा, तो पता है मैं तो उनके सामने कह रहा हूँ कि वो रेस जो करते हैं। मुखालिफ है, जो मुखालिफ है ला मोहल्ला, वो आपके नेगेटिव पॉइंट ही रेज करेगा। ये तो अगली बात है। हाँ बिल्कुल, जान तो खींचनी है। मैं इस चीज को तो मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं तो खुद उनके मुंह पे कह रहा हूँ कि वो मुखालिफ हैं, वो नेगेटिव पॉइंट रेस करते हैं और उनका हाँ, काम तो है। ये कहेंगे कि मिर्जा साहब ने तो ये कहा है, भाई कहा होगा, उनको कोई वही हुई थी। सीधी सीधी सी बात है। टाक मास्टर साहब, मेरा एक यार था पाकिस्तान में, उससे मैंने एक बात सीखी। उसने मुझे कहा कि जब भी बारिश आती है ना, बारिश से पहले गुम्मा होता है, गुम्मा, उसको पंजाबी में हम गुम्मा बोलते थे, मतलब वट सा हो जाता है, हवा रुक जाती है, हवा का जो बहाव है या हवा का जो है वो उसकी स्पीड वो बिल्कुल स्लो हो जाती, कम दबाव जिसको बोलते गुमसुम हो हैं, जाता है काम। गुमसुम हो जाता है मौसम। गुमसुम सा हो जाता है। बल्कि उसने कहा कि आप सर्दियों में भी, उसने एक दिन मुझे हैरान कर दिया। गर्मियों में तो हम कहते थे ना कि वाटो है बदल आवेगा, गर्मियों तो हम सब कहते थे। एक दिन सर्दियों में उसने मुझे हैरान कर दिया। उसने कहा ये सर्दियों की रातें थी, तो मुझे कहता है ये देखा है कल परसों से आप देख रहे हैं कि वो रात को दिल करता है कि रजाई उतार कर नीचे फेंकी जाए और वो मच्छर जो है वो कूं कूं करता है। मैंने कहा यार बात तो ठीक है, कल रात भी ऐसे हुआ, आज रात को। कहता बारिश आने लगी है, और उसी दिन बारिश आ गई। सर्दियों में भी उसने कहा कि ये जो हवा का कम दबाव है, जिसकी वजह से ठंड कम हो गई है, टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर आया है ना, ये हवा जो ठंडी चल रही थी, पो का महीना था, कहता ये जो ठंडी हवा चल रही थी जो रुकी है ना, ये बारिश की नवीद लेकर आई है, बारिश आएगी, आज आई कल आई बारिश, और बाकी बारिश आ गई। तो उसने कहा कि बारिश से पहले ये गुम्मा होता है, जब भी गुम्मा होता है बारिश आती है। ये उसने अपने मुशाहिदे से बात की, तजर्बे से बात की। अब मैं या कहूंगा कि उसका तजर्बा सही है या कहूंगा कि गलत है। मैंने देखा कि वाकई बात तो उसकी ठीक है, और उसके बाद मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया, आज तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब भी ऐसे होता है, गुम्मा सा होता है। मुझे उसकी बात याद है, सैयद इमदाद शाह उसका नाम था, सैयद था, मेरा दोस्त था, टीचर भी था। तो वो कहता है कि ये ऐसे होता है। अब ये उनकी जिंदगी का तजर्बा है, मुशाहिदा है। भाई या उसका मुशाहिदा गलत है या सही है, ये फिर अगर ये बात सही नहीं है, कभी हो जाता है कभी नहीं हो जाता। अगर ऐसा हो कि कभी वैसे भी बारिश आ जाए, कभी गुम्मे के साथ आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि शाह साहब ने बोंगी मारी है मेरे सामने। मेरी बात समझ गए ना? ये कैसे शाह मार साहब दिया? हाँ, तजर्बा उनका गलत है। चले आमिर साहब, मैं थोड़ा ये लास्ट ना मैं गल करदा। टाक मास्टर भाई, मैंने उनकी कोई फेवर नहीं की, वो एक एतराज़ कर रहे थे, मैंने तसल्ली से सुना, और मैंने कहीं पे उनके एतराज़ के साथ कोई चीज़ एग्री नहीं की। मेरे कज़न है जिनके साथ इनका मुनाजरा होना, तो मुझे उन पर पूरा यकीन है। और ये भी एग्री तो ठीक नहीं है, किया, एग्री तो नहीं किया किसी गल काबिल- का? मेरे साथ किसी बात पर एग्री तो नहीं किया आपने? नहीं 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 बस ठीक है, फिर ठीक है, बस ऐसे गल ਦਾ हाँ, ਧਿਆਨ ਉਹ ਰੱਖਣਾ। ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਨਾ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਗਰੀ ਕਰ ਹੀ नहीं सकते ਤੁਸੀਂ, हाँ ठीक जी, है। ये तो ना मुनाजरा अपना जो फेवर हो रहा है है, इनके साथ। देखिए मतलब ये ना मुनाजरा हो रहा है। आमिर साहब, जो मैं मानता हूँ ना कि चलो इनको दुश्मन भी मान लेते हैं वैसे, बट ये बेहतरीन दुश्मनों में से एक दुश्मन है जो एक बेशक नेगेटिव ही, पर एतराज लेके आते हैं, और इसी तरह से सबकी लाइवें चलती हैं और सुनते हैं सब लोग। तो मतलब मैं इन चीज़ों से आजकल तो वैसे भी दूर ही रहता हूँ, मेरा ये शौक भी नहीं रहा।
और मुझे पता है कि यहाँ से कुछ निकलना भी नहीं, ये तो मैं चीज़ समझ चुका हूँ। बट लेट्स सी कि इनका ये एतराज़ है और वैलिड पॉइंट जो मुझे समझ में आया तो उसका वो मैं देखूंगा। तो मैंने कोई फेवर नहीं किया, आपने ये गलत इल्ज़ाम ठीक लगाया। है, और फिर बाकी आप बाकी सीनियर हैं, अब आप आगे हैं। मैं अगर आपके होते हुए मैं बैठा हूँ और अपने ये सारी चीज़ें, मतलब मुझे नहीं लगता, मेरे पास इतना इल्म नहीं है। आप बात करें सबके साथ। जज़ाकल्लाह मेरे भाई, जज़ाकल्लाह बस साहब, यूसुफी भाई, थैंक यू। मैं ये पूछ रहा था कि ये मुनाजरा कब हो रहा है पाकिस्तानी ये टाइम? इन्होंने लिखा हुआ है टाक मास्टर भाई, 29 जून। 29 जून 2025। अब ये 29, सुबह हाँ है, जी। शाम है, कोई पता नहीं। नहीं ये अभी नहीं, सुबह नहीं है, अभी है टाइम काफ़ी। आमिर भाई क्या टाइम है? टाइम तो उनके साथ अभी तय नहीं हुआ, शायद टाइम होगा। डेट 29 है। हाँ, 29 तारीख को टाइम होगा शायद। क्या बता रहे थे, इधर हैं वलीद भाई नीचे? शाम के यूरोपियन वक्त के मुताबिक 6 बजे और यूके वक्त के मुताबिक 5 बजे, अगर मैं गलती नहीं चले। इसमें सरपंच कौन होगा? ये इसमें थानेदार कौन होगा? थानेदार होगा फेवरेट 49। अवाम 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 फेवरेट 49 और जज जज अवाम। अवाम, हाँ। ये तो फिर अवाम तो अपनी अपनी है भाई, वो तो आपके बंदे आपको हलाशरी देंगे। चले अब बात करें यूसुफी भाई। मैं ना हम्बल इंसान हूँ, मैं हम्बल ही रहता हूँ, मैं ऐसे गलत बातें नहीं हर बंदे के साथ करता। थैंक यू, आपने भी बड़े अच्छे से बात की, नहीं नहीं, आपसे मैंने अच्छे से नहीं बात आपको हुई। बिल्कुल कहा। हाँ, तो आपकी हाँ, मेहरबानी। पहले आपको मेरे बारे शुक्रिया। में बैड कमेंट्स आ रहे थे, मैं वैसे हर इंसान के साथ ये वो बदतमीजी नहीं मजाक करता। में दोस्त कर चल देते हैं, मजाक में हम कतन ऐसा नहीं समझते किसी को, चल, इसीलिए तो मैंने थैंक यू आपको सर, कॉल थैंक कर यू ली। सबको। हाँ जी, थैंक यू। मैं नीचे बैठता हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। ऊपर बैठे, नीचे क्यों बैठ रहे हैं? ऊपर जब कुर्सी है, सोफा है आपका, तो फिर नहीं, नीचे वो मुझे क्यों? बैग जाके मैसेज करने ना व्हाट्सएप पे, ऊपर वो रिप्लाई भी करना होता है साथ साथ। मैं अच्छा, सुन तो ये रहा हूँ। ये अताल मनान साहब आपके कज़न है और राजा गौहर भी आपका कज़न है? राजा गौहर कौन है? वो जो यूके में होते हैं, गुजरात वाले। गुजरात वाले वो उनके जाने वाले होंगे, क्योंकि वो भी गुजरात से हैं, तो वो कज़न नहीं है। नहीं, वो एक दिन यहाँ आपसे बात भी कर रहे थे ना यार, वो जिनकी वो पहले डीपी होती थी, घोड़ा उस होता था उनकी डीपी पे। नहीं, वो सारी चीज़ें ओपन ना करे। अब उनकी उनकी अपनी मतलब वो पर्सनल वो में रखते हैं, उन्होंने कभी उस वो तरह नहीं गुजरात किया, के, मतलब वो ये। राजा साहब गुजराती है हमारे। हाँ, ये तो सोशल मीडिया की सेलिब्रिटी है ना, ये तो जमात अहमदिया को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो इसलिए मैं इनके बारे में बता दिया आपको कि ये मेरे कज़न है। अच्छा तो मुसाफिर बाकी हाँ, साहब, ये मैं उनको आपकी जानता कजन हूँ। जो आपकी फुप्पो हैं, वो गुजरात उनकी शादी हुई थी या आप भी गुजरात से ही? नहीं नहीं, मैं गुजरात से नहीं हूँ, तो ये तो वो गुजरात से हैं। उनकी शादी, आपकी फुप्पो की शादी गुजरात में हुई थी? तो जाहिर बात है। हाँ, अच्छा, समझ आ रही है। चले, थैंक यू। अच्छा जी, टाक मास्टर साहब, ये बात इसकी जो समझ नहीं आई। किसके हाँ जी, किसके हाँ जी, समझ? बोले। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो बात है कि झूठा सच्चे की जिंदगी में मरता है, ये फिर बोंगी है या सही है या गलत है? नहीं, ये जो झूठा सच्चे की जिंदगी में मरता है, वो तो मुबाहले की सूरत हाल है ना। मुबाहले की सूरत में झूठा सच्चे की जिंदगी में मरता है? नहीं, कहा जाता है, मैं नहीं कहता। हाँ, वो भी कहा जाता है, कई दफा ऐसे होता है, कई दफा नहीं होता है। मुबाहला करने वाला ये कहता है कि दूसरा जो है वो मेरी जिंदगी में मर जाएगा, जो झूठा है, बिइज़्निल्लाह। नहीं, मुबाहला तो ठीक है, मुबाहला करने वाला तो झूठा सच्चे की जिंदगी में मर जाए तो ये तो ठीक है, लेकिन वैसे आम तौर पर एक काज़िब आदमी जल्दी मर जाए, मैं तो ये नहीं समझता। फिर ये बोंगी हुई ना। मिसकंसेप्शन कह लें, अपना अपना वो तजुर्बा कह लें, गलत तजर्बा कह लें। या वहम कह लें। वहम।
वहमी, तो बंदे को वहमी कह सकते हैं, वहमी है, हाँ बिल्कुल, ये वहम ही हो सकता है। वहम है कि झूठा जो है वो। अच्छा, तो आपने आज जाके मिर्जा साहब को वहम ही कहना है ना, तो कह दे मेरे भाई हम नल तो की। एक जनरल बात कर रहे हैं कि जो बंदा भी ये बात कहे कि झूठा सच्चे की जिंदगी में मर जाता है, उसको वहमी कह सकते हैं ना। हमेशा तो ऐसे नहीं होता ना कि झूठा सच्चे की जिंदगी में मरे, तो फिर वहमी हुआ ना, वहमी हुआ ना वो, हाँ वहम ही हुआ। वहमी। अच्छा अच्छा अच्छा, वहमी आदमी है जो ये कहता है कि झूठा सच्चे की जिंदगी में मरता है। और भाई मुझे पता है जो आपने करना है, मेरे पे कोई भार नहीं है। आमिर नज़ीर भाई जो कुछ कहना है वो कह दें। नहीं नहीं, मैंने जो कहना था वो कह दिया है कि मेरा तजुर्बा ये है कि कोई गुनाहगार हो या नेक हो, कोई झूठ बोलता हो या सच बोलता हो, उसकी मौत इससे रिलेटेड नहीं है बिल्कुल। बहुत अल्लाह, बहुत अल्लाह। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ सर। मैं कब कह रहा हूँ कि आप गलत बात कह रहे हैं? मैं उस बंदे की बात को गलत कह रहा हूँ जो ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि झूठे की लंबी उम्र नहीं होती और वो अपने दुश्मनों के सामने हलाक हो जाता है। मैं तो उसको गलत कह रहा हूँ, आपको तो नहीं गलत कह रहा हूँ। तो कहते रहे ना, मेरा क्या जाता है। मैंने तो देखो अपनी बात बताई है कि मेरा तजुर्बा या मेरा दिमाग जो है वो इस मामले में क्या कहता है। अब कोई जो कुछ कहता है वो जिम्मेदार खुद उसका है, मैं नहीं हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये जो बंदे हैं, जो उस बंदे के फॉलोअर हैं, इनसे ना पूछा जाए कि भाई आपका क्या ख्याल है भाई चार मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो एक बड़ा वहम है ना जी। कि वो मुबाहला करेंगे और दूसरे की जिंदगी में वो पहला वाला या झूठा जो है वो दूसरे की जिंदगी में मर जाएगा, मैं तो इसको भी नहीं मानता। नहीं, आप तो मुझे पता है नहीं मानते इन चीज़ों को, क्योंकि जाहिर है कि आपका जब इस तरह का कोई है ही नहीं, सिलसिला ही नहीं है कि भाई रब सुनता है दुआ और रब कभी झूठे सच्चे का फैसला कर देता है। एक मिनट नज़ीर भाई, एक मिनट। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ या इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो फिर आप ऐसा ना करें, आप एक हफ्ते का मुबाहिला किसी से कर लें। मेरा दावा है दोनों को कुछ नहीं होगा। जनाब अभी हमने किया था मुबाहिला, अगरचे इसकी ज़रूरत हर वक्त नहीं होती और हर वक्त छोटी छोटी बातों पे हर बंदे के मुतमिन करने के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन आप याद रखें कि आज है जून की 11 तारीख। पिछले साल 3 जून को यहाँ पर मुबाहिला हुआ, ज़ियार रसूल अमीनी भाई का मुबाहिला हुआ, और वो नासिर कुवैत वाला वो आज से 1 महीना पहले, बल्कि 1.5 महीना पहले 18 अप्रैल को आके हमारे सामने घुटने टेक गया कि भाई मैं अपनी बात से रजू करता हूँ। तो हमने देखा है। नहीं तो इससे क्या मेरी बात जो है वो गलत साबित होती है? हाँ, आपकी बात गलत साबित हो रही है, क्योंकि अगर मसलन किस तरह अगर वो बंदा कुवैत वाला नासिर का नाम है, अगर वो हमारे सामने आके घुटने ना टेकता तो भी उसका अंजाम बुरा होने वाला था, और अगर उसने टेक कर आके हमारे आगे तस्लीम कर लिया अपने आप को गलत, तो ये भी शिकस्ती है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक मतलब हुज्जत ही है जो कायम हुई है कि भाई देख लो, ये बंदा ये मरने जा रहा था, उसने अपनी जिंदगी बचा लिया, ये कह कर के मैं अपनी बात से क्यों करता हूँ, पीछे हट गया। अच्छा, अगर वो नासिर जो है, अगर वो इतना तोहम परस्त है कि उसको डर लग गया कि मैं मर ना जाऊं, फर्ज किया कि उसको डर लग गया, तो इसमें मेरी बात कैसे गलत साबित हो सकती है? मेरी बात को गलत साबित करने के लिए आपको मुबाहिला करना होगा, और फिर मैं देखता हूँ कि कौन मरता है उसमें से। नहीं, हर बंदे के साथ ये तो बात नहीं है कि उसने घुटने टेक दिए तो ये भी एक तरह की समझो मौत है या इस जिल्लत है या अल्लाह ताला ने जलील कर दिया, ये फला, ये तो बातें हैं, कहानी है, जितनी मर्जी कर ले। असल मसला ये है कि 2 आदमी मुबाहिला करें और हर दफ़ा ये हो कि दूसरा मर जाए। अब ये कोई तरीका नहीं है
कि ऐसे होता मोबाइल नहीं, तो हमने- 5 हो, अगर हाँ 5 मोबाइलों में से एक बंदा, अगर एक दफा का बंदा जो है वो मर जाए तो आप उसको इत्तेफाक के बजाय मोबाइल का नतीजा कर दे। नहीं, हमने तो 5 मोबाइलों का तो ये इश्तारी आप अपने पास से बातें ऐड कर रहे हैं ना, 5 मोबाइलों का 10 मोबाइलों का तो हम कह ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं मोबाइल अवॉइड करना चाहिए, दलाइल के होते हुए मोबाइल अवॉइड करना चाहिए। जरूरत ही नहीं है कि आप हर बार, अब अभी भी तो आप मुझे कह रहे हैं ना मेरे साथ मोबाइल करो, मुझे मार के दिखाओ, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं तो इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ। लेकिन अगर कहीं ऐसी सूरत हाल बन जाए कि जिद ज़्यादा ज़ोर पकड़ जाए, कुफर जो है वो ज़्यादा वो नाचना शुरू कर दे नंगा, और मोमिन अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह ताला के दीन की सच्चाई के लिए खड़ा हो जाए, अल्लाह ताला फैसला करता है, अल्लाह ताला दिखाता है। और हमने देखा है अपनी आंखों से, जो कुछ देखा है वो आपने भी देखा है, आप भी गवाह हैं, लेकिन आप फिर भी इनकार ऐसे कर रहे हैं। सुन तो लेना, वो आपने देखा है, ये क्लेम ना करें कि मैंने भी देखा है। मैंने नहीं, नहीं आपने भी देखा, देखा है, आप भी गवाह हैं इस बात के। मैंने नहीं आपकी देखा। आंखों के सामने वो बंदे ने रजू किया, आप रोकते रहे उसको, वही आप रजू उसको किया टांगों है। से पकड़कर, आप उसकी टांगों से पकड़कर उसको पीछे घसीटते रहे, उसने जाके टच कर दिया बाउंड्री लाइन को। एक मिनट, मैं- एक मिनट, मैं मोबाइल रिकॉर्डिंग की हुई है, आप यहाँ मौजूद थे। मुझे ये बताएं कि मोबाइल का नतीजा क्या डिसाइड हुआ था कि क्या होना चाहिए था? भाई जो भी लानत पड़ेगी हम दोनों में से जो झूठा, क्योंकि दोनों ने दुआ जो की, भी दुआ की की बात थी। नहीं है, जो भी की बात नहीं है, मेरी बात सुने। दो बंदों के दरमियान मुबाइला हुआ, डिसाइड क्या हुआ था कि जो हरे, जो झूठा होगा उसको क्या होगा? हाँ, वो रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, मैं ज़बानी आपको सुना देता हूँ क्या कहा था। हाँ, क्या कहा था? इन्होंने ये बददुआ की थी दोनों ने एक दूसरे के लिए कि हम में से जो भी झूठा है, दोनों ने कस्में खाकर कहा कि मैं सच्चा हूं, और दोनों ने ये कहा था कि अगर मैं झूठा हूं अपनी इस कसम के खाने में, तो या अल्लाह मुझे 1 साल के अंदर अंदर इबरतनाक अंजाम से दो चार कर, हमारी इबरतनाक मौत हो जाए या इबरतनाक अंजाम हो जाए, या हमें इबरत का नमूना बना दे, हम पर अपना अजाब नाजिल कर, ऐसा अजाब नाजिल कर कि लोग उससे इबरत पकड़ें। ये मफहूम है उनकी गुफ्तगू। दोनों ने तकरीबन गोया पहले यही ही बात है। एक रास्ता छोड़ दिया गया, एक रास्ता छोड़ दिया गया कहानियां बनाने के लिए। वही सीधा सीधा ये क्यों नहीं किया कि हमारी जिंदगी, जो सच्चे की जिंदगी में झूठा मर जाए? मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, मैं तो मौत की बात कर रहा हूँ कि अगर ये बात मुबाहिले में अगर मौत की शर्त लगाई जाए तो मैं यकीन रखता हूँ कि मौत इन चीज़ों से नहीं आती। अगर जो आप फरमा रहे हैं ना कि सही दरवाज़ा तो इस तरह करके लगाते, मशरक की तरफ मुंह करके चगाट के पीछे सीमेंट सरिया लगाते, उसके अंदर फिर बजरी भरते, दरवाज़ा इस तरह करके लगाते कि वो कहते कि हम दोनों में से जो झूठा है वो सच्चे की ज़िंदगी में मर जाए। आप हो सकता है मर जाते, ये दोनों अभी जिंदा रहते, इनकी ज़िंदगी का फैसला हो सकता है 20 सालों में, 30 सालों में, 50 सालों में होता, आप ना देख पाते। फिर तो हर जगह दरवाज़ा तो कहीं ना कहीं, जो चोर है, जो लूमड़ है, जो भागने वाला, उसके लिए तो दरवाजा कहीं ना कहीं से खोटी छोटी वो निकाल ही लेता है। हमारी आंखों के सामने ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उस बंदे को इबरत का नमूना बनाया। वो बंदा हमारे सामने आकर आपकी मौजूदगी में, टाक मास्टर साहब आप पैनल पर मौजूद थे, जब वो बंदा रजू कर रहा था आप उसको रोकते रहे। कसम खा के कहें आपने नहीं रोका उसको कि ये लफ्ज ना कहना, ये बात ना कहना, रोका कि नहीं आपने रोका? मैंने उसको बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप ये ना कहना। हाँ, उसकी वजह ये है कि मैं ये बात कर ही नहीं सकता किसी से। मैंने अलबत्ता उनको ये कहा था कि क्या आप उस मुनाजरे से रजू करते हैं? कहते नहीं, मुनाजरा तो हो गया जो होना था। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी आपके सवाल के जवाब में, वो ये था कि आपने पूछा था कि भाई जो मुनाजरा हुआ है उसका जो नतीजा निकलेगा, उस नतीजे पर जो है वो आप उसको मानेंगे? तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगा। ठीक। अब मुझे बताएं कि अगर मैं आपके सामने वो रिकॉर्डिंग रख दूं जिसमें आप उस बंदे को रोक रहे थे और वो बंदा बोलता चला जा रहा था कि नहीं, मैं अब इसका नतीजा नहीं मानूंगा, मुझे करना ही नहीं चाहिए था मुबाइला, मुझसे गलती हुई, हमका भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो, हमका माफ़ी दे। जब वो बंदा ये कह रहा था, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो ये कह रहा था कि इसका कोई नतीजा नहीं, जो नतीजा निकलेगा मैं उसको मुबाहिले का नतीजा नहीं समझूंगा। हाँ, तो वो मतलब सही कह रहा है ना
कि अब जो कुछ भी हो जाए, मुझसे गलती हो गई, मुझे करना ही नहीं चाहिए था मोबाइला, अब जो कुछ भी हो जाए वो मोबाइले का नतीजा नहीं होगा। इवन उसने अगर गोया- रियाज भाई को भी सुन तो ले, उसने गोया ये कह दिया कि ये जो मुबाइला था ये हुआ ही गलत है, इसलिए इसका कोई भी नतीजा निकलेगा मैं उसको नहीं मानूंगा। करना ही नहीं चाहिए था। हाँ, तो उसने अपनी गलती से जो कर लिया ना। अगर आज आप मेरे साथ मुबाइला करते हैं, आप भी 9वें महीने 10वें महीने आके आपका पेट जो है वो बड़ा हुआ और आप भी आकर जो कर लें और आप कहीं मुझे गलती का एहसास हो गया, करना ही नहीं चाहिए था, तो क्या नतीजा निकाला जाएगा बताएं? नहीं, उसने जो बात की थी वो ये की थी कि दरअसल मुझे बाद में पता लगा कि इस तरह मुबाइला होता ही नहीं है, लिहाजा ये मुबाइला नहीं हुआ, मैं इसका नतीजा नहीं मानूंगा। उसने नहीं, तो ये नहीं कि तरीके पर इख्तलाफ था, ये नहीं कि उसने कहा कि तरीका गलत हो गया, उसने कहा मुबाइला ही नहीं करना चाहिए था, मुझसे भूल हो गई, मेरे इल्म में ये बात नहीं थी, अगर मेरे बात आप इस होती बात तो मैं ये पर गलती ना करता। एक मिनट, आप इस बात पर अड़े रहें, लेकिन मैंने जो अपनी बातें करनी थी वो तो मैंने कर दी। बार कर, वो ठीक है, वो बात खत्म कर देते हैं, आप इसको क्योंकि वहम मानते हैं। हाँ, मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हूँ कि उसका मुबाइला हुआ था तो ये हुआ था, ठीक है, फिर ठीक उसने है, ये किया था। मैं ये समझता हूँ कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप कह दें कि मिर्जा साहब का वहम था कि अब्दुल्ला आथम दिल में डर रहा था, उसको नेज़े वाले दिखाई दे रहे थे, सांप दिखाई दे रहे थे, वो डर के कभी फिरोजपुर चला गया, वो डर के कभी लुधियाने चला गया, फिर वो भाग के वहां लाहौर चला गया, तो ये मिर्जा साहब का वहम था। आप कहते रहे, मेरा क्या एतराज है, आप जाने मिर्जा साहब जाने, लेकिन हम मानते हैं कि मुबाहला जब होता है तो अल्लाह ताला की कुदरत लोगों को, अगर लोग मुंतजिर हों, यहाँ पर टिकटॉक पर लोग मुंतजिर थे, ये कोई इनफरादी जाती दो बंदों का मामला नहीं था कि उन्होंने आपस में झगड़ा तय कर लिया। जब लोग सामीन हो जाते हैं, नाजरीन हो जाते हैं, हाजरीन हो जाते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत ज़हूर में जरूर आती है। डिपेंड करता है केस किस तरह का, अगर जितना स्ट्रांग केस हो, यानी जितने ज्यादा लोग होंगे, अल्लाह ताला की कुदरत उतनी यकीनी तौर पर लोगों को सच दिखाएगी। लेकिन अगर दो झगड़े, जिस तरह आप मेरे साथ झगड़े हैं, मेरा और आपका जाती है ना, हो सकता है इस तरह के मैं और आप लड़ पड़े तो अल्लाह ताला उसका कोई नतीजा नहीं दे कि इन्होंने दीन को खेल और तमाशा बना लिया, बात बात पे मोबाइल शुरू हो जाते, वो ठीक है, मैं उससे एग्री हूं, नहीं होना चाहिए, मैं इसीलिए अवॉइड कर रहा हूं। लेकिन जब आप लोगों के लिए एक खेल बना देते हैं, वो लोग देखने के लिए मुंतजिर हो जाते हैं कि लो जी अब फैसला होने लगा, आखिरी फैसला के नाम से जब आप कोई ऐलान कर देते हैं कि अब मेरा इसके साथ फैसला होने लगा और लोग भी उसके नतीजे के मुंतजिर हों, अल्लाह ताला फैसला करता है। हम मानते हैं कि अल्लाह ताला इंटरवीन करता है, अल्लाह ताला फैसला करता है दुनिया में, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला इस दुनिया में लोगों के मामलात में इंटरवीन नहीं करता। ये बात मुझे ये बताएं कि डॉक्टर डेरिंग और नासिर को कोई इतने बड़े या इतने कोई खास फिगर्स हैं कि अल्लाह ताला उनकी बातें सुनकर तलवार सोच लेगा कि भाई अब मैंने इसका फैसला करना है? ये क्या चीज है दोनों? असल में आप क्या हैसियत है? बड़े लोग क्या हैसियत है इन दोनों की? कितनी कौमें इन दोनों के पीछे खड़ी हैं कि अगर वो एक हार गया तो वो कौम पूरी जो है वो मुसलमान हो जाएगी या फिर काफिर हो जाएगी? कुछ भी नहीं ऐसा। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोग ये टिक टॉक पर आकर ये जो मुबाला कर रहे हैं, भी आपकी हैसियत क्या है? क्या खुदा जो है वो आपके इन टिक टॉक की बातों पर जाके इन्वॉल्व होगा कि भी ये बहुत मसला बन गया है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा? राग मास्टर साहब, कहने को तो आप मिर्जा साहब इस के बात को छोड़ें, ये मुझे बताएं कि ये जो आपने दिया है आखिरी फैसला इश्तिहार पर फैसला कुन मुनाजरा, मुझे तो ये समझ नहीं है कि ये टॉपिक क्या है, क्या इसमें आप क्या साबित करना चाहते हैं और अताउल मनान किस चीज़ को डिफेंड करेंगे, ये थोड़ा सा बता दें। हाँ, असल में ना ये मैंने उनसे पूछा था कि आप क्या साबित करेंगे वहां पर, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि हम जो साबित करेंगे वो करेंगे, अभी हम नहीं बताएंगे कि हम वहाँ क्या साबित करेंगे। ये क्या बात हुई? यही बात होती है इन लोगों की। नहीं तो आप किस बात का रद्द करने जा रहे हैं? ये कोई नई बात नहीं है मोहतरम, आपने हज़ार मर्तबा देखा। इनसे पूछे ना खत्म नबूवत का अकीदा आपका क्या है, तो ये जवाब देते हैं कि हमारा ये अकीदा है कि तुम्हारा अकीदा गलत है।
इन बेचारों के यही हालात है, ये अपने मुंह से आपने भी तो ये मुबाइला कबूल करके 29 जून की डेट दी है ना, मुझे आप बताया कि हाँ मैं आप क्या साबित किस करूं? बात पर करना हाँ हाँ चाहते हैं? हाँ, मुझसे पूछे तो मैं तो बता सकता हूँ, वो नहीं बता सकते। क्यों? उन्होंने मौके के हिसाब से पंचर लगाना है, मौका माल के एतबार से। मुझसे पूछे मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या साबित करना है। मैंने ये साबित करना है कि मिर्जा साहब ने 15 अप्रैल 1907 को अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला से फैसला चाहा, बिल्कुल ऐसे जैसे अबू जहल ने बदर के दिन मक्का से निकलते हुए खाना काबा की चौखट को पकड़कर कहा था ना कि या अल्लाह आज फैसला कर दे हमारा और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उनका और हमारा फैसला कर दे। अगर हम झूठे हैं, अगर मैं झूठा हूं तो आज मुझे इनके हाथों कत्ल करवा दे। लेकिन अगर उन्होंने खामखा से रिश्तों में दरारें डलवा दी हैं, आज उनको हमारे हाथों कत्ल करवा दे। या अल्लाह हमारा फैसला कर दे, या अल्लाह हमारा फैसला कर दे, या अल्लाह हमारा फैसला कर दे। खाने काबा की कुंडी पकड़कर अबू जहल ये रो रो के कह रहा था। वो आया बदर के मैदान में, आसमान से आयात नाज़िल हुई, सूरह अनफाल खोलें। इन तस्तफ्तिहू फक़द जाअकुमुल फतह, तुम इस्तफ्ता कर रहे थे, तुम अल्लाह से फैसला चाह रहे थे, ये आ गया फैसला। उसी दिन मारा गया अबू जहल। ऐसे ही मिर्जा साहब ने भी 15 अप्रैल 1907 को ये कहा था, या अल्लाह मेरा और मौलवी सनाउल अमृतसरी का फैसला कर दे, अगर मैं झूठा हूं मुझे उनकी जिंदगी में मार दे, लेकिन अगर वो झूठे हैं और मैं सच्चा मसीह मऊद हूं तो उनको मेरी जिंदगी में मार दे। आसमान से वही आवाज आई, इन तस्तफ्तिहू फक़द जाअकुमुल फतह, तुम इस्तफ्ता कर रहे थे, तुमने फैसला चाहा था, ये आ गया हमारा फैसला। 26 मई 1908 को फैसला आया और मिर्जा साहब मर गए और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी 1948 तक जिंदा रहे। जी, ये हम साबित करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो उन्होंने नहीं बताया कि वो क्या साबित करेंगे? वो नहीं बता सकते, वो बेचारे कुछ कह भी नहीं सकते, चुप रह भी नहीं सकते। इसका मतलब है कि वो जो अभी आपने दावा किया है ये उसका रद्द करेंगे। मुझे ये भी नहीं पता, मैं अपने पास से खाम खा कह दूं, आप उनसे पूछ लें कि भाई आप वहाँ क्या करेंगे। मुझे नहीं समझ आई कि फिर ये कौन सा मुनाजरा है कि भी ना तो दावा है ना जवाब दावा। चलो जवाब दावा तो हो गया, आपका तो दावा नहीं, जवाब दावा नहीं दावा लगता है मुझे, आपका तो ये दावा है। आमर नजीर का तो दावा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, उनसे तो ये पूछे, आपका ये दावा सवाल हो उनसे गया। पूछें। नहीं, सुने ना, ये आपका दावा है जो अभी आपने सुनाया है, जी जी, तो इसका मतलब है कि वो इस दावे के रद्द करेंगे, बस यही होगा ना? पता नहीं वो क्या करेंगे ये तो मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे। मेरा तो ख्याल है वो रोक कर दिखाएंगे, वहां पर क्या करेंगे? रोक कर दिखाएंगे। जैसे स्कूल में बच्चे को सबक याद नहीं होता तो वो रोक के दिखा देता, कहता है मास्टर जी मैनू नहीं सी सबक याद। ये करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे बेचारे, क्योंकि आपका और उनका मुनाजरा तय होने का मतलब ये है कि वो डट कर आ रहे हैं, वो रोने के लिए तो नहीं आ रहे। भाईजान वो रोक कर दिखाएंगे, रोक कर दिखाएंगे। मेरी बात रिकॉर्ड कर लें, कैमरा ऑन कर लो, मोबाइल ऑन कर लो, रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। राजा ताल मनान साहब रो कर दिखाएंगे। हमारे दावे के बिल मुकाबल दावा भी नहीं कर सकते। जो बंदा दावे के बिल मुकाबल अपना दावा नहीं कर सकता वो क्या करेगा? वो रो कर तो आप डिमांड नहीं, तो आपने मुनाजरे से पहले उनको ये डेट देने से पहले उनको कहना था कि आपका दावा या जवाब दावा क्या है। कहा था हमने, पूछे हमसे, किसी बात में इंशाल्लाह आपको हम झूठे दिखाई नहीं देंगे। हमने कॉन्फ्रेंस कॉल की थी, हमने उनको कहा था कि आप अपना दावा शरीफ दे दें कि आप वहां पर क्या करेंगे। उन्होंने कहा जो होगा, जो बन पड़ेगा करेंगे।
जो होगा करेंगे। बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब कहते हैं कि मैं गया जामिया अहमदिया में। मैं समझ गया। उन्होंने कहा जो होगा करेंगे, जिस तरह भी होगा करेंगे। चलें, ये तो फिर यानी कि ये ऐसे ही है, यानी कि वो हम इसका इंतजार करें कि नतीजा इसका बस वो शोर शराबा ही होगा और तो कुछ नहीं होगा। नहीं, शोर शराबा क्यों होगा? आपने तो बंदा ही रोता हुआ देखना है ना। चैलेंज ही कंप्लीट नहीं है। हाँ, मैं तो ठा देखूंगा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मैं पहले से बता रहा हूँ कि इसका नतीजा अपना अपना होगा। आप अपना निकालेंगे, वो अपना निकालेंगे। अच्छा मेरी बात सुने, 1 मिनट के लिए अभी गुफ्तगू नहीं हुई। आप हमारे बेगाने, हमारे मुखालफ है ना। हाँ जी। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? कौन है जो मुख्ती और कौन है जो मुसीब? मतलब हम दावा कर रहे हैं और जवाब में वो कुछ भी नहीं कर रहे। आपका क्या ख्याल है, कौन गलती पर है? आपकी कमजोरी है, डेट आपने दी हुई है यहाँ पे। नहीं, मतलब जो बंदा दावा भी नहीं कर सकता वो कमजोर है, या जो अलाल इलाम दावा कर रहा है कि ये मेरा दावा है वो कमजोर है? नहीं, यहाँ पर तो सच्ची बात है कि आपका दावा, अगर उन्होंने कोई जवाब दावा नहीं दिया तो आपका दावा जो है आप कमजोरी शो नहीं करता। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये तो ठीक हो गया। लेकिन मैं तो इस चीज को देख रहा हूँ कि ये जो 29 जून की डेट दे दी है और लोगों के कान खड़े हैं 29 जून के लिए, ये बेवजह खड़े हैं, क्योंकि मुझे यानी कि इस तरह जो कुछ आप कह रहे हैं वो लगता यूं है कि नतीजा अपना अपना होगा। नहीं, मैंने आपसे पूछा इसलिए है कि जिस तरह आज आप कह रहे हैं ना कि सच्ची बात तो यही है कि तुम्हारा मौक़िफ़ वाज़े है और दूसरी तरफ अबहाम है, खामोशियां हैं और ऐसे ही है जैसे रोने लगे हैं। ये इंशाल्लाह आप उस दिन भी कहेंगे कि सच्ची बात यही है कि तुमने रुलाया है और वो उन्होंने रो कर दिखाया है। ये कहेंगे इंशाल्लाह आप। अगर हुआ तो मैं तो ऐसे ही कहूंगा, लेकिन इंशाल्लाह होगा। बताना ये चाहता हूँ कि देखें, एक तो दावा और जवाब दावा ये कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, जो होस्ट है वो भी एक सिलेक्ट होना चाहिए, वो तो चलो आपने कर लिया या नहीं किया जो भी है। तीसरा, एक जज भी जरूर, 1 या 3 जज भी जरूर मुतय्यर होने चाहिए, ताकि उसका कोई ऐसा नतीजा निकले कि जो अवाम पर ना छोड़ा जाए कि अभी अवाम फैसला करेंगे। ये तो कोई बात ही नहीं है ना कि अवाम पर फैसला। ये तो सिर्फ ये है कि अवाम का फैसला तो फिर ये होगा कि आपके लोग आपको जिता देंगे और हमारे लोग हमको जिता देंगे। बात तो सीधी सीधी सी है। तो फिर इसका फायदा क्या है जो 29 जून 2025 आपने लिखा हुआ? मोहतरम, बात यह है कि असल में हमने ये ही साबित करना है, जो हमने साबित कर ही दिया है तकरीबन, कि ये बेचारे इस इश्तिहार के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर हैं उफ़िल्लाह, दुख सह भी नहीं सकते। बात यह है कि वो तो मेरे सामने नहीं है, आप मेरे सामने हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब जवाब दावा ही नहीं है तो आपने ये क्या कहते हैं मुनाजरा जो है उसको एक्सेप्ट क्यों किया? नहीं, ये बात आप हमसे ना करें। हमने इसलिए एक्सेप्ट किया है कि जिस तरह आज हम आपको बता रहे हैं ना कि ये बेचारे अपना जवाब दावा भी नहीं दे सकते, बता भी नहीं सकते कि इनका मौक़िफ़ क्या है इस पर, ऐसे ही हम इंशाल्लाह 29 जून को भी इनको रुलाएंगे, बल्कि उससे पहले ही रोएंगे ये, और आपको उनकी आवाज़ें आ जाएंगी। ये हम साबित कर देंगे इंशाल्लाह। इसलिए हमने रखा है, रुलाने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो ये दो रो रहे हैं।